once again welcome you all for this transportation engineering video lecture. Okay. In the previous class we were discussing about I think JICA committee board पे जो हुआ था, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें we discussed about the road development plans in India, that is first 20 year, second 20 year, third 20 year, classification of roads, all those information we discussed, correct? So now we move on to the next point, and a very important point है, examination point बहुत बार ये question पूछा था, but most of the time students do the same mistakes because they refer Nirali TechMax book and they will write some answers which are there in the Nirali TechMax. See, what I'm trying to tell is I'm not telling that is wrong answer, but it is not the examiner will expect those answers. Okay? Because whatever the when we go for the corrections, so obviously we will get some answers. ये बाबा ये points रहना चाहिए. So the answers will include these points. ठीक है? So examiner और जो भी paper correction करता है, so that fellow is going to look for these answers. If you are not writing these answers, obviously you may not get the full marks. Clear? So this is the problem. So please, if they ask in the examination, that is about what are the different planning surveys and give brief explanation for the planning surveys. So you go with these 4 points. Okay? So don't write preliminary survey, that survey, reconnaissance survey, blah 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 blah. There are n number of surveys are there. So you don't write all those surveys. There is if you write even 2-3 pages also, it is no use. Most of the time the students will get 0 marks, even though if you have written 2-3 pages. Okay? So if you want time मिला तो मैं जब करेक्शन किया था और प्लानिंग सर्विस के लिए 2-2, 3-3 पेज बच्चों ने लिखा था और दे गॉट 0 मार्क्स, वो मैं फोटो निकाल के रखा था पुराना लैपटॉप में, ढूंढ के कभी लेके आऊँगा. ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग व्हाई आई एम टेलिंग दिस पॉइंट इज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया तो प्लीज यू कैन सी हाउ मच पॉइंट्स आर देयर. नो नीड टू राइट पेजेस, even if you write these things it is more than enough. Okay? You will get very good marks. Okay, so we'll start with the topic, that is planning surveys. See, basically I already told every project will start from planning. That the planning stage is the first stage, correct? So you do the planning, some may tell survey, yes, all those things comes under planning. So planning पहला होता है, उसके बाद by taking this planning, उसके बाद जो भी उसकी information collect करते हैं, based on those information we'll go for design, and after once the design is approved we'll go for the constructions. Then once the construction is done we'll go for the maintenance work and regular maintenance सब करते हैं. So these are the basic steps in infrastructure projects, correct? So basically when you go for planning, what is planning service means? See, for doing planning you need some data, correct? मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर प्लान करना है कि बाबा मेरे को रोड कंस्ट्रक्शन करना है, 100 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, उसको पैसा को मैं कैसे किधर से लोन लूँ या खुद के पास है क्या, या मैं प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करने के बाद 100 करोड़ मैं इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को ऑब्वियसली आई नीड सम रिटर्न्स, तो वो मिलेगा क्या मेरे को, अगर मिलता है तो कितने साल में मिलता है. ठीक है? या मेरा रोड जो भी कंस्ट्रक्शन किया है तो वो रोड का यूटिलाइजेशन कितने लोग करने वाले हैं, बिकॉज कितने लोग यूटिलाइज करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कितने साल में वो पैसा रिटर्न आएगा. सी ऑल दिस पॉइंट्स आर देयर. सो ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको मिला तो यू विल गो फॉर प्लानिंग. ठीक है? सो दैट मीन्स for planning you require some data, and to collect that data you are going to do some surveys. These surveys are called as planning surveys. A very simple explanation है. For doing planning for the infrastructure projects or road projects, since we are talking about the road projects, so since for the planning of the roads or highway developments, so you need some data, and those data will be collected by conducting some surveys, and those surveys are called as planning surveys. Okay, so what are those surveys which you require? There are 4, whatever the information is there, it is divided into 4 groups, or basically you can call it as there are 4 planning surveys. Okay? The first one is economic studies, okay? And the second one is financial studies, and the third one is traffic or road use studies,
एंड द फोर्थ वन इज इंजीनियरिंग स्टडीज. ठीक है, मतलब जो भी n नंबर ऑफ सर्वेस आते हैं, ऑल दो सर्वेस आर डिवाइडेड इन दिस 4 ग्रुप्स. क्लियर है? सो these are the 4 surveys: economic studies, financial studies, traffic use studies or road use studies, and fourth one is engineering studies. Clear? So now we will move on to the ठीक है. Before going, I told you people is going to write wrong answers examination में 0 marks मिलता है या 1 marks मिलता है बोला था ना. So where you are going to do the mistake is Niravi Techniques में जो भी दिया है, those people will concentrate only on that engineering studies. They will forget all these 3 studies. So जो भी वो बात करते हैं इसी के अंदर बात करते हैं, अलाइनमेंट का सर्वे, रिकॉग्निजेंस का सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है? सो व्हाट अबाउट अदर 3 व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट देन दिस. ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू फॉलो दिस 4 इंजीनियरिंग सर्वेस, सो यू विल गेट द गुड मार्क्स. ओके डन, वी विल कंटिन्यू. ठीक है? सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्टडीज. वी विल सी व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू कलेक्ट थ्रू दिस इकोनॉमिक स्टडीज. And before going into that one, don't get confused with the economic studies and financial studies. Both are very different. Okay? Both are related to money, but in a very different way. Okay? See, economy is very different than financial. Financial is अपना, मतलब खुद का लाभ कितना होगा, खुद के लिए प्रॉफिट कितना होगा, या खुद के लिए क्या इसमें एडवांटेज है. So whenever you are going to talk about like this, so this comes under financial studies. ठीक है? So when you are talking about the economic studies, it is for the country. ठीक है? So that means इससे क्या डेवलपमेंट हो सकता है, कितने लोगों को उपयोग हो सकता है, ये रोड कंस्ट्रक्शन किया तो कितने लोग इसका यूटिलाइज करेंगे. So when you are talking about like this for others, for the country, so then it is called as economic studies. When you are talking about financial studies, okay, मैंने 100 करोड़ डाला है तो कितने टोल कलेक्ट होगा, उससे मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना % मेरे को मिलेगा, कितना बैंक कितने साल में मैं और पूरा पैसा मतलब जो भी लोन लिया तो वो वापस कर सकता हूँ. जब ये बात करते हो ना, सो दोस थिंग्स आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टडीज. आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक स्टडीज एंड द फाइनेंशियल स्टडीज. ठीक है? सो चलो विल सी डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच इंक्लूड्स इन दिस स्टडीज. ठीक है? ओके, इकोनॉमिक स्टडीज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन. Okay, before going for any road projects, first we have to see what is the population there. Okay? Because ultimately you are going to provide the road connectivity for the people plus goods. Okay? These are the 2 major road users बोलते हैं, correct है? So population चाहिए. सिर्फ population नहीं, even you require its distribution and classification. मतलब कैसे spread हुआ है population, कैसे distribute हुआ है. मतलब इस एरिया में 500, समझे एक एरिया लिया है, उसके अंदर बहुत सारे लोकेशन पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कहाँ पे 500 से कम है, कहाँ पे 1000 से ज्यादा है, या 500 से 500 पे 1000 में क्या है, जो भी है आप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट करते समय आपके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, बट यू नीड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ठीक है? एंड इट्स वही क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है या लो पॉपुलेटेड है, ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो. उसके ऊपर एक्चुअली उसके ऊपर प्रोजेक्ट डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर वेरी लो पॉपुलेटेड एरिया है तो उसका यूटिलाइजेशन भी ऑब्वियसली लो होगा, या आपका रोड कनेक्टिविटी कितना हाई है, डेंस पॉपुलेशन एरियाज को कनेक्ट कर रहा है. बीच में लो पॉपुलेटेड एरिया भी आता है. आई एम नॉट टेलिंग हमेशा आपका रोड हाई पॉपुलेशन को ही कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट इफ यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपको पता रहना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच इज कनेक्टिंग हाउ मेनी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज और मीडियम पॉपुलेटेड एरियाज एंड लो पॉपुलेटेड एरियाज, ऐसे आपको पता रहना चाहिए. उससे आपको पता चलता है कि उसका यूटिलाइजेशन कितने लोगों को मिल रहा है. ठीक है? सो दैट इज अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एंड इवन यू रिक्वायर पॉपुलेशन ग्रोथ. सी, once again, you are building the roads for not for today, you are going to design the roads for 15 years, 20 years, 25 years, 30 years. So that means आपके पास पॉपुलेशन है, बट नेक्स्ट 20 साल में पॉपुलेशन कितना रहेगा, करेक्ट? आई एम करेक्ट? सो वो पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई यू नीड पॉपुलेशन ग्रोथ आल्सो, कि कितने फास्ट ग्रोथ हो रहा है. ठीक है? कि उस नेक्स्ट 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आपको डिजाइन करना पड़ता है. ठीक है? सो एंड यू शुड नो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ. हाँ, आई ऑलरेडी टोल्ड कि
you are giving this road or you are constructing road not only for the people, even for the goods transport owner. तो that one also you should know कि कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इधर इस एरिया में खेती करते हैं या कौन सा इंडस्ट्री से या उसका ग्रोथ कितना है, क्योंकि वन सेकेंड आज इतना है तो 15 साल के बाद भी उतना ही रहता है ऐसा नहीं है. Obviously it is going to grow because as population grows, this demand also grows. So interlinked है. So these information आपको पता रहना बहुत important है. प्लस इनकम पर कैपिटा इनकम भी बहुत important है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है उधर. So these informations जो कलेक्ट करते हो, these data जो कलेक्ट करते हो, और वो सर्वे के लिए बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक स्टडीज. ठीक है. द सेकंड वन इज फाइनेंशियल स्टडीज. इसमें इंडिविजुअल आता है, जैसे कि सोर्स ऑफ द इनकम. इंडिविजुअल सोर्स क्या है कि ये समझो आप एक एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू चार्ज सम टोल प्लाजा. ठीक है. सब गरीब लोग हैं उधर, मतलब नॉट हाईली सोर्स ऑफ इनकम बहुत कुछ भी नहीं है या क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है. आप अगर उनको चार्ज किया उस रोड यूज करने के लिए, चलो बाबा 150 रुपए आपको पे करना है इस एक्सप्रेसवे को यूज करने के लिए ऐसा. सो नोबडी इज गोइंग टू यूज. वेरी सिंपल. सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर फाइनेंशियल स्टडीज. यू नीड टू नो फॉर whom you are constructing the road. ठीक है. सो सोर्स ऑफ इनकम इट इज इंपॉर्टेंट. रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन एंड रोड ट्रांसपोर्ट, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में बिकॉज ऑफ द रोड टैक्सेशन. ठीक है. वो भी उससे पता चलता है कि कितने लोग गाड़ी ले रहे हैं, उनका ग्रोथ कितना है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, वो सब आता है इसी में. ठीक है. और देन लिविंग स्टैंडर्ड्स, I already told you should know living standards of the people in that particular area. Future trend, that is details in the vehicle registration. कितना ग्रोथ हो रहा है व्हीकल्स, ताकि डिमांड है क्या इधर, लोग ज्यादा व्हीकल्स ग्रोथ है बोले तो लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो पैसा है तो बेटर प्रोवाइड करो और आपको रिटर्न्स मिलेगा ऐसा है. सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टडीज. ठीक है. द थर्ड पार्ट इज ट्रैफिक एंड रोड यूज स्टडीज. ठीक है. So in this one you are going to do a lot of surveys which is purely based on traffic. ठीक है. Because see, until unless you don't have the traffic, you don't get the money. नहीं, आप कितने भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, जब आप किसी के सामने रखोगे तो वो पूछेगा बाबा इससे मेरे को रिटर्न मिलता है. आप 1000 करोड़ लगाओ, 5000 करोड़ लगाओ या 10,000 करोड़ लगाओ, कोई एक कंपनी अगर 1000 करोड़ लगा रहे है तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड समझो 1100 करोड़ उसको चाहिए 15 साल में. I'm just giving an example. So that means he may need 100 crores profit in next 15-20 years. ठीक है. So that means to achieve that profit, he requires traffic. Until unless he doesn't have the traffic, कौन आके टोल भरेगा? अगर ट्रैफिक ही नहीं है, टोल ही नहीं भरेगा तो इसका प्रोजेक्ट लॉस में जाएगा. तो इसीलिए they will do all the survey so that they should get the green signal. बाबा ये प्रोजेक्ट करो, इससे पैसा अच्छा मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा या प्रॉफिट में जाएगा प्रोजेक्ट. ठीक है. सो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज करते हैं. वन सेकेंड एट प्रेजेंट का ट्रैफिक वॉल्यूम ही नहीं, इवन दे रिक्वायर्ड द ट्रैफिक ग्रोथ आल्सो. ठीक है. प्लस ट्रैफिक फ्लो पैटर्न, मतलब ट्रैफिक फ्लो पैटर्न के मतलब कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं. एक एरिया के अंदर एक सिटी को कनेक्ट करने के लिए तो बहुत सारा रूट्स रहता है, बट कौन सा यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है. ऐसे भी हो सकता है कि मैक्सिमम लोग समझो ए टू बी जाने के लिए या ए टू सी जाने के लिए ये बी सी रूट चूज कर रहे हैं. अगर आपने दूसरा ए टू सी डायरेक्ट लगाया और इतना ट्रैफिक शिफ्ट होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं. किसको पता, मैक्सिमम लोग बी को ही स्टॉप हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच, क्योंकि ए टू बी ही मैक्सिमम जा रहे हैं और ए टू सी जाने वाले बहुत कम लोग हैं. अगर आपने डायरेक्ट रूट ए टू सी बनाया तो थोड़ा ही पोर्शन शिफ्ट होगा. सो ये फ्लो पैटर्न भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे विच इज फेमसली कॉल्ड एज ओडी स्टडीज. ठीक है. ये आगे आएगा. सो मतलब यू शुड अंडरस्टैंड बाय कंडक्टिंग ओडी स्टडीज, मतलब कहाँ से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, कितने इंटरवल पे ट्रैवल करते हैं. सो मेनी डेटा विल बी कलेक्टेड इन ओडी स्टडीज. क्लियर. एंड इज देयर एनी मास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये भी फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑलरेडी एक मास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है तो आपका प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा वो भी डिपेंड होता है इसके ऊपर. तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट रहता है.
देन यू गो फॉर एक्सीडेंट स्टडीज, दिस डेटा आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सीडेंट स्टडीज करने के बाद आपको ऐसा पता चला कि बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका रीजन पता चल गया, देन यू कैन यूज दैट डेटा एंड यू कैन प्रोवाइड बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो उससे गवर्नमेंट इंप्रेस हो सकता है या लोग इंप्रेस हो सकता है, एंड दे पीपल या रोड यूजर्स में think this is safer route and they may use this route, so many criteria, ठीक है। Then passenger trip and goods movement, this is what I was talking, that कितने बार जाते हैं, क्या करते हैं, मतलब so many information, कहाँ जाते हैं, कौन सा routes finalize करते हैं जाने के लिए, कहाँ कहाँ पे रुकते हैं, क्यों रुकते हैं, वो सब information find out करना है, क्योंकि कहाँ पे रुकते हैं, खाने के लिए रुक रहे हैं, उधर provision देना, ट्रक वाले क्लीनिंग के लिए रुकते हैं, उनको एक जगह प्रोवाइड करना जहाँ पे वो फ्रेश अप हो सकते हैं। See, all these things can be provided. अगर एक रोड है A to B जाने के लिए जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, निकला तो निकला बस हो गया, बीच में कहीं तो एक पेट्रोल पंप मिलता है उतना। अगर नया रोड प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे आप रेगुलर इंटरवल पे एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे आप उनको रुकने के लिए जगह दे रहे हो, फ्रेश अप होने के लिए बाथरूम फैसिलिटीज दे रहे हो, नहाने के लिए पानी प्रोविजन दे रहे हो, बाथरूम फैसिलिटीज दे रहे हो, टेलीफोन दे रहे हो, सोने के लिए कुछ ऐसे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऐसा बना के दिया है। सो एक जगह दिया रहता है, ट्रक्स वाले बहुत उधर पार्क करके थोड़ा रेस्ट लेके खाना पीना, उधर आजू बाजू में दुकान रहते हैं, मस्त खाते जाए। अगर ऐसा प्रोविजन रखा है एक रोड है, बट उस रोड के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। दूसरा है A to B जाने के लिए उधर कुछ भी नहीं मिलता है, पेट्रोल पंप मिलता है, आजू बाजू में चाय का डब्बा वैसा मिलता है, बट उसका पैसा नहीं है। तो मैं बेट करता हूँ मैक्सिमम जो heavy trucks रहते हैं ना, they will go for the road with you have to pay, because they don't mind if they are ready to pay 100 200 whatever the charges are there, until unless they are getting the better facilities. When they get the better facilities, so rest लेने के लिए, पानी fresh up होने के लिए, so they are ready to pay. Okay, that's why this data is very much important. ठीक है। The last one is engineering studies, which हम लोग आते हैं। All these things we are only doing, but this is our main discipline, that is we are going for road location alignment studies, कि exactly हम प्लान करते समय हमको फिक्स करना है कि अलाइनमेंट कौन सा से पास होके जाना चाहिए। all those things we are going to finalize the alignment, you are going for all the soil testing surveys, because based on all whatever the pavement design is there, everything depends upon the soil strength, soil properties, ठीक है। तो soil survey is important, even the topographic studies ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिजाइन ऑफ द रोड डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी। प्लेन टेरेन है तो अलग स्टैंडर्ड से, रोलिंग टेरेन है तो अलग स्टैंडर्ड से, हिली रीजन है तो अलग स्टैंडर्ड से। तो ये सब कहाँ पता चलता है, कैसे पता चलता है? बेस्ड ऑन द टोपोग्राफिक स्टडीज। सो दीज आर द 4 प्लानिंग सर्वेस, ठीक है। सो इकोनॉमिक स्टडीज, फाइनेंशियल स्टडीज, ट्रैफिक और रोड स्टडीज, इंजीनियरिंग सर्विस स्टडीज। तो ये अगर आपने इतना भी लिख के थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन किया ना, यू विल गेट फुल मार्क्स। Instead of this one, if you write some blah 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 मसाला डाल के कुछ भी बको तो किया तो कोई मार्क्स नहीं देने वाला है। इंडिया ऐसा है, वैसा है, इसका ये बड़ा है, उसका उधर इधर है, इसका रोड ऐसे बनाते हैं, नो यूज। तो देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, खाना कम मसाला करके लगा के बताते हैं, 0 मार्क्स मिलता है। ठीक है, कीप इट सिंपल एंड कीप इट परफेक्ट आंसर, विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्लास का जो भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू विद द दूसरा टॉपिक। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सॉरी नॉट ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे।